अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द डेथ बाय वाटर, विच इज़ शॉर्टेज section of the wasteland. It's the fourth section of a wasteland. So death by water is by far the shortest of the five section of T.S. Eliot's. It's published in 1922. Overall, the wasteland, the whole volume was published in 1922. So the section which precedes it, the fire sermon, is about 234 lines. Okay, over half of the entire length of this poem. Why is the death by water so short? We're going to attempt a brief summary of this section of this poem here. So please don't forget to subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Any analysis of death by water must contend with the question that how come this fourth section is so much shorter than the other four which make up the wasteland. Like fire sermon is a longer section, the burial of death is also a longer section, the second section is the game of chess is also a longer section, as well as the fourth one is also fifth one, the last one section is also a longer section. So why the death by water, the fourth section is so much shorter? So here we go. Because the here was the friend of T.S. Eliot, Ezra Pound. She was cutting down a poem of nearly 1,000 line to the 434. Overall line of the wasteland is 434. So she cut it of the thousands line to 434 lines. Okay, it has been clear to you, I hope so. And this poem, the death by water, was also very longest section, but she cut it off. That's why it has just 10 lines, because when she was editing, then Ezra Pound penned a very bore and very longest and very irrelevant lines, then that's why she cut it off. And now this is called the shortest section of this wasteland. So I hope it has been clear to all of you. So let's get started the summary or critical analysis of this poem. The important thing is that this section, in his shortest coverage, cover a long draft. Like it talk about the Phoenician sailor Philebus, as well as talk about the shipwreck and a career of man at sea. It cover a lot of main events in this shortest section. So जब ये बात होती है ना कि ये shortest section है, a very shortest section of this poem, but क्या है कि इसमें it cover a lot of events, a lot of themes in just 10 lines. ठीक है, इस वजह से हम इसको लॉन्गेस्ट सेक्शन से शॉर्टेस्ट, इस वजह से इसको लॉन्गेस्ट ड्राफ्ट कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कवर करता है, बहुत ज़्यादा थीम्स को कवर करता है. Even about all other four section like Burial of Death, as well as Game of Chess, and the Fire Sermon, and the last one section, fifth section, it also has been covered in this the Death by Water. That's why इसका हम ड्राफ्ट जो है उसको लॉन्गेस्ट ड्राफ्ट कहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्टार्ट में ही द बर्ल ऑफ डेथ में अगर देखा जाए तो बर्ल ऑफ डेथ में क्या है, मैडम सोसोट्रिस, ठीक है, जो कोई टैरेट रीडर थी, जो कार्ड्स के ज़रिए आपको आपका फ्यूचर बताती थी. ठीक है, पाम टेलर कह लें या म्यूजिशियन थी वो. ठीक, अब वो फर्स्ट बिल ऑफ डेथ फर्स्ट सेक्शन में ही वो वार्न करती हैं, और उसका रेफरेंस भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बताया, मतलब उसके बाद वो फेलबस के बारे में बात करती हैं, फिनिशियन सेलर के बारे में बात करती हैं, डूबते हुए इंसान जिनकी कश्ती जो है वो आपको मैंने बताया था कि उन्होंने रेफरेंसेस लिए हुए हैं, शेक्सपियर के भी रेफरेंसेस वहाँ पे लिए हुए हैं. वहाँ पे एक ग्रुप था सेलर्स का, वो डूब गया था. ठीक है, तो वो रेफरेंस वहाँ के
जिस चीज़ से वो डराती हैं, डेथ बाय वाटर, वो इस चीज़ में भी, इस सेक्शन में भी हमें कवर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे फेलिबस एंड फिनिशियन, ये एक ग्रुप था सेलर्स का जिनकी कश्ती जो थी वो डूब गई थी। अ फोर्टनाइट डेथ, अब कह रहे हैं कि 2 वीक्स पहले इनकी डेथ हो गई है या 15 दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले, नॉट क्लियर। मैंने आपको बताया इट्स मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न टाइम पीरियड कि कुछ भी क्लियर नहीं होता, हर चीज़ में इल्यूजन लास्ट भी होती है, हर चीज़ जो है वो अनक्लियर होती है। ठीक है, अब उनको कंफर्म नहीं है कि कब उनकी डेथ हुई है, लेकिन क्या है कि अब इनकी डेथ जो है ना वो 2 चीज़ें लेके आई है, प्रॉफिट एंड लॉस्ट। किस तरह? अब इनकी डेथ तो हो गई है, लेकिन इनकी डेथ पे ना कोई रोता है ना कोई शोक मनाता है। ठीक है, और इनकी जो बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़, वो समंदर में कहीं डीपली जो अंदर तक है वहाँ पर गिर गई हैं और किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। ठीक है, इनकी प्रॉफिट और लॉस की क्या वजह है कि अब इन लोगों की डेथ हो गई है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है। ठीक है, इस दुनिया में मुनाफा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इस दुनिया में ये दुनिया के लोग जो है वो वेस्टेज मटेरियल की तरफ जा रहे हैं, वेस्टेज सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट लैंड कहते हैं इस मॉडर्न सोसाइटी को कह दिया गया है। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो दुनिया तबाह कर रही है, एज वे प्ल्यूट कर रही है दुनिया को। ठीक है, हमने जैसे लास्ट में पढ़ा वो किस तरह उन्होंने हॉली प्लेसेस को भी प्ल्यूट कर दिया, एज वेल एज हमने पढ़ा कि किस तरह जो है वो सिविलाइजेशन की वजह से बिल्डिंग्स बन रही है, गैसेस के जो गैस हाउस है उसमें से धुएँ ना आ रहे हैं और पूरी एयर को प्ल्यूट कर रहे हैं, नेचुरलिस्टिक प्लेसेस को प्ल्यूट किया जा रहा है। अब इस वजह से यहाँ पे इनको प्रॉफिट कहा गया है, इस प्रॉफिट इनका इस वजह से हुआ है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब जैसे भी लोग जिएँ, क्योंकि ये अच्छी ज़िंदगियाँ जी के चले गए हैं। अब जो प्योर ज़िंदगियाँ थी ना इन्होंने जी ली, अब लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से दूर हो रहे हैं। ठीक है, रिलीजन से दूर हो रहे हैं, तो इस वजह से इनको कहा गया है कि बड़ी अच्छी इन्होंने लाइफ गुजारी है, तो अब ये चले गए हैं तो अच्छा हुआ कि इन्होंने ये दुनिया नहीं देखी। यहाँ पे इनका प्रॉफिट हुआ है। लॉस कहाँ पे हुआ है कि अगर ये इस वेस्ट लैंड में होते, ये मॉडर्न सोसाइटी में होते, तो शायद ये इनके हिस्टोरिकल पॉइंट्स जो है इनको क्लैरिफाई करते, इनको बताते कि आपके एंसेस्टर्स ने, आपके प्रीडिसेसर्स ने किस तरह लाइफ गुजारी है, उनको इनकी हिस्ट्री सुनाते अपनी पुरानी, और शायद ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मॉडर्न सोसाइटी को डूबते हुए जो मॉडर्न सोसाइटी है उसको बचा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजन की तरफ ला सकते हैं। डेट्स वाई कहते हैं कि इनका दोनों तरह का है। यही बात हो गई है कि फिर अनक्लियर्ड ये इवेंट्स दिखाए हैं कि प्रॉफिट भी है नुकसान भी है, दोनों चीज़ें जो है एक साथ है, और मॉडर्न सोसाइटी में मैन को पता ही नहीं है उसके साथ नुकसान हो रहा है ये फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और जो कुछ भी वो काम करता है उसमें उसका आधा नुकसान होता है आधा फ़ायदा होता है, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती, हर चीज़ अनक्लियर है, हर चीज़ में इल्यूजन पाई जाती है। एज़ वेल एज़ अगर हम बात करें उसके बाद एक मॉडर्न मैन, जो इंसान काम करता है, मॉडर्न मैन जो है इस वेस्ट लैंड के अंदर रहते हुए, इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में रहते हुए, इस मॉडर्न सोसाइटी में रहते हुए जो भी वो काम करे, आप देखेंगे कभी उसकी डेस्टिनेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। जैसे कि उसने कोई काम किया है उसमें कोई ना कोई ख़राबी आ जाएगी, यानी कि जो उसकी मंजिल है वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा, उसका काम नामुकम्मल भी नहीं होगा, मुकम्मल भी नहीं होगा। ठीक है, वो इन दोनों की सिचुएशंस के दरमियान फंसा हुआ होगा, ठीक है, लटका हुआ होगा। तो यही अनक्लियर सी कैरेक्टरिस्टिक ये हमें बार बार दिखाई गई है, हर सेक्शन में दिखाई गई है, जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक है वेस्टलैंड मॉडर्न सोसाइटी की और मॉडर्निज्म की। अब यहाँ पे फेलिबस और फिनिशियन सेलर डूबे हैं, ये एक प्लेन है। ठीक है, प्लेन यहाँ पे हम कहें मैदान को, ठीक है, जहाँ पे वो डूबे हैं। अब वो प्लेन जो है वो क्या है, वो किस इलाके में पाया जाता है, वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, ठीक है, वहाँ का इलाका है, जहाँ पे आज, उस ज़माने में तो उसको ईस्टर्न मेडिटेरेनियन बोलते थे, लेकिन आज वहाँ पे लेबनान और सीरिया जो है वहाँ पे पाया जाता है। उन इलाकों में फिनिशियन और जो फेलिबस है उनकी कश्तियाँ डूबी थी और वो वहाँ पे डूब के मर गए थे। अब वहाँ पे जो ट्रेड एंड फाइनेंस है वो भी वेस्टलैंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से भी अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हारें, वो अब प्रॉफिट हासिल हो या लॉस हो, क्योंकि वो तो मर गए हैं। अब वो क्योंकि वो जो सेलर्स डूबे हैं ना,
वो भी ट्रेडिंग पे बड़ा इंटरेस्ट रखते थे, ट्रेड करते थे। अब वो मर गए हैं तो इस वजह से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मरे या जिए, क्योंकि अब सॉरी मरे या जिए नहीं, यानी कि वो प्रॉफिट हो उनको या लॉस हो, क्योंकि वो मर चुके हैं, अब उनको कोई फ़र्क नहीं इन चीज़ों से पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ लाइंस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, जेंटाइल एंड ज्यू। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और लाइंस आती हैं लाइक रोज एंड फेल, प्रॉफिट एंड लॉस, एज वेल एज एज एंड यूथ। ये तमाम की तमाम लाइंस यहाँ पे एंड और का वर्ड यूज़ हुआ है जॉइनिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें ना एक तो अनक्लियर वर्ल्ड को, मॉडर्न सोसाइटी को रिप्रेजेंट करवा रही हैं, एज वेल एज ये डेथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये सिंबल है डेथ का, क्योंकि इंसान जो है उसकी स्पिरिट जो है वो दरमियान में लटकी हुई है, ना वो मर रहा है मॉडर्न मैन, ठीक है, ना वो जी रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये डेथ बाय वाटर। अब डेथ बाय वाटर अगर हम देखें, इसका जो टाइटल है एक पानी से इंसान की मौत हो जाना। अब जब इंसान डूबता है ना पानी में, तो वो समंदर, गहरे समंदर में चला जाता है, और जब वो समंदर उसकी हड्डियाँ जो है वो ख़त्म कर देता है, कि उसकी हड्डियाँ गल सड़ जाती हैं, तो वो उसको ऊपर ले आता है, यानी कि समंदर उसको बाहर धकेल देता है, ख़ुद बर्दाश्त नहीं करता। और ये सिंबल है मॉडर्न सोसाइटी की। अब मॉडर्न सोसाइटी जो है वो गहरे कुएं में गिरी हुई है, ठीक है, उनकी लाशें गहरे कुएं में हैं, और अब वो स्पिरिचुअलिटी से दूर हो गए हैं, उनकी हड्डियाँ गल सड़ रही हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनके दिल, उनके ज़मीर, अकीदे, हर चीज़ मर रही है, इंटरनली वो मर रहे हैं। और जब इंटरनली वो मर जाएंगे, ठीक है, पूरे तरह गल सड़ जाएंगे, तो क्या होगा, अब वो जो है फिर उनको फेंक दिया जाएगा। किस तरह फेंक दिया जाएगा? जब उनकी आंखें खुलेंगी, जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा, तब मॉडर्न मैन खोखला हो जाएगा और ऊपर पानी में तैरने लगेगा, जो कि सिंबल है कि इंसान वेस्ट हो चुका है, इंसान मर चुका है। अब फिर कोई भी उस इंसान को बर्दाश्त नहीं करेगा और कोई भी नहीं उससे पूछेगा। इसी तरह इन सेलर्स के साथ हुआ, इनके ख़ानदान को नहीं पता कि कहाँ है, कौन है, लापता, अननोन आइडेंटिटी है, एंटिटी है ये, अननोन अगर आप कहें तो इनकी कोई भी फैमिली नहीं है, कोई भी इनको पूछेगा नहीं। और यही हाल होता है मॉडर्न मैन के साथ, कि जब वो मर जाता है, बल्कि जब वो अपनी गहराइयों में जा रहा है, अंदर से मर गया है, बिल्कुल होलो हो चुका है, और फिर अब क्या है, वो ऊपर आ चुका है, कि कोई किसी को भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इवन के साथ बैठे उसके फ्रेंड जो हैं, जिसको अपेरेंटली आप देखेंगे वो फ्रेंड है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कैसा है, उस हाल तक नहीं पूछेगा उसका, ठीक है। तो ये सिंबल है डेथ बाय वाटर, कि अब मॉडर्न सोसाइटी जो है ना वो हॉलो हो चुकी है, स्पिरिचुअली भी, इंटरनली भी, ठीक है। सिर्फ फिज़िकल लाइफ वो जी रहे हैं, बॉडी उनके पास है, लेकिन वो भी अंदर से नाकारा हो चुकी है। Here I'm going to tell you a story of Philebus. ये एक young man था and handsome sailor who was drowned after the leading a boring business career. वही बात कि ये ना एक business करते थे, trading करते थे, ठीक है। He was caught in a whirlpool and passed through various stages. There is no chance of rebirth for the sailor who represent the modern man, because there is no desire to follow spiritual value. The rejection of higher value is cause of the inevitable decay of modern civilization. जब ये जा रहे थे तो क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा स्टेजेस से गुजर के जा रहे थे, ठीक है। उसमें से उन्होंने एक स्टेज में ऐसा फंस गए, एक किसी ऐसी जगह पे फंस गए जहाँ से निकलना, जहाँ पे रीबर्थ पॉसिबल नहीं थी, अब मरना ही मरना था उन्होंने, ठीक है। और यही क्या है मॉडर्न मैन की खसूसियात है, मॉडर्न मैन को सिम्बलाइज़ करती है बात, कि अब वो ऐसे स्टेज में आके फंस गए हैं जहाँ पे रीबर्थ पॉसिबल नहीं है। अब इंसान को वो मरना ही मरना है, उस तबाही के दहाने पे जाना है। अब कोई स्पिरिचुअल वैल्यूज़ नहीं रही, कोई डिज़ायर्स नहीं रही, अब कोई भी जो है हायर वैल्यूज़ नहीं रही, ठीक है, जो कि मॉडर्न मैन को बचा सके अनबिलीवेबल डिके से, जो कि सिविलाइजेशन की वजह से हो रही है। So now we tell about the moral. The moral is that all men and travelers subject to a law of change, decay and death. ठीक है, the sailor has forgotten the cry of seagulls, the roaring of rough wave and business affair. His body rose and fell in the waves, and ultimately he was sucked by whirlpool of death.
क्या हो गया, यहाँ पे पूरी स्टोरी बयान कर दी गई है इस चीज़ की। मैंने आपको बता दिया कि वो इंसान जो थे ऐसे सिचुएशन में फंस गए थे जहाँ पे रीबर्थ या दोबारा ज़िंदगी पॉसिबल नहीं थी। अब वो डर गए थे, खौफज़दा हो गए थे, वो चिल्लाना भूल गए थे, उनकी आवाज़ें नहीं निकल रही थी, ठीक है। और अब वो बिज़नेस अफेयर्स का भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनका बिज़नेस डूबे, ट्रेड जो है जितनी वो चीज़ें लेके जा रहे थे वो डूबे या ना डूबे उनको इनसे कोई फ़र्क नहीं, वो अपनी लाइफ से कंसर्न थे। लेकिन क्या हुआ, आखिरकार वो डूब गए, वो फंस गए एक वाइट पूल में जहाँ पे उनकी बॉडीज़ में वो नीचे गिर गई और फिर मरने के बाद उनकी बॉडी उठ गई और वेव्स के साथ बहने लगी और ही वॉज सक्ड बाय रिपर ऑफ डेथ, और वो डेथ के हाथों मर गए, ठीक है। अब एट द एंड ये हमें बताया जाता है, रिफ्लेक्ट करती है लाइंस, एट द एंड एंड द डूम ऑफ द फेलाबस द वर्ल्डली मर्चेंट, ऐसा इंसान जिसको दुनिया से बहुत प्यार था, वर्ल्डली थिंग्स से बहुत प्यार था, ठीक है। लेकिन एंड पे क्या हुआ, वो चीज़ों की कोई कदर नहीं की उसने, वो कह रहा चीज़ें बेशक डूब जाए लेकिन मेरी लाइफ बच जाए। द आइडिया इज़ डैट द पीपल हु डिवोट दैमसेल्फ टू वर्ल्डली परस्यूट एंड accumulation of rich will be punished and drowned in ripple of death। जो इंसान दुनिया की ख्वाहिशात में लग जाता है, ठीक है, उसको अमीर बनना है, दुनिया की चीज़ें इकट्ठी करनी है, एंड पे क्या होता है, डेथ उसको आके काबू कर लेती है, ठीक है। अब their youth, strength and wealth will not be any use to them। Deliverance from death can be achieved only through the pursuit of moral values and practice of love of God। आपको सिर्फ आपकी इखलाकियात बचा सकती हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी बचा सकती हैं, आपकी ने जो गुड डीड्स की हैं वो बचा सकती हैं। डेथ तो होनी होनी है, ठीक है, लेकिन जो असली मुश्किलात हैं वो आफ्टर डेथ स्टार्ट होती हैं, आफ्टर हेयर आफ्टर जो है वो आपको स्टार्ट की जाती हैं, आपके अमनामा इमाल, और फिर बाकी वो पूरा जहान जो है स्टार्ट होता है। तो ये बताया गया है कि वो जो मर्चेंट मरा फेलाबस, वो भी एक जवान इंसान था, वो भी दुनियावी फैसिलिटीज़ में पड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब वो मर चुका है, अब उसको प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे दो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ नज़र आ रहा है और एक है वर्ल्ड की तरफ। कि स्टार्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि उनको प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो रही है नहीं हो रही, मॉडर्निज्म से मॉडर्न सिविलाइजेशन आ रही है नहीं आ रही, मॉडर्न मैन तबाह हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन क्या है, सेकेंडली बताया जाता है कि वो इंसान खुद भी ऐसे ही थे जैसे आज का मॉडर्न मैन है, जैसे आज का मॉडर्न मैन होलो स्पिरिट रखता है, उस तरह वो मैन जो थे वो भी वर्ल्डली डिज़ायर्स के पीछे थे, उनको स्पिरिचुअलिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन ये सिंबलाइज करता है कि वो लोग जो पुराने लोग थे, ठीक है, वो अच्छे थे, इंसेस्टर्स जो थे वो अच्छे थे। लेकिन मॉडर्न मैन जो है ना वो तबाही के दहाने पे, तो उनकी हिस्ट्रीज़ वही सुना सकते थे जो कि उनके साथ ही तबाह हो गए, उनके शिप जो है वो सेलर के ग्रुप्स जो थे, अब वहाँ पे अच्छे इंसान भी थे बुरे इंसान भी थे, ठीक है, तो दोनों के दोनों तबाह हो गए। और यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। इसके अलावा मैं आपको थीम्स के बारे में अगर बात करें, यहाँ में हमें डेथ का थीम नज़र आता है, इमोरलिटी का थीम नज़र आता है, मॉडर्निज्म का थीम नज़र आता है, वेस्टलैंड का थीम नज़र आता है, और डेथ बाय वाटर का थीम भी नज़र आता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंबल्स हैं, जैसे कि बोन्स के सिंबल्स, प्रॉफिट एंड लॉस के सिंबल, फिर उसके बाद क्राई ऑफ गर्ल्स की सिंबल, फिर फेलाबस और फाइनेंशियल ये खुद एक सिंबल है। उसके अलावा यहाँ पे रिलपूल की सिंबल है जेंटाइल एंड यू, यानी कि मुस्लिम ज्यूज़ और नॉन ज्यू, यानी कि जिनका ईमान है स्पिरिचुअलिटी वाले और जो ईमान नहीं भी रखते वो भी, सब ने एंड पे मरना है, ठीक है। अब विल्ड यहाँ पे सिंबल है, विंडवार्ड यहाँ पे सिंबल है, फिर हैंडसम एंड टॉल एज यू ये सिंबल है कि जो पुराने लोग थे जिन्होंने ऐसे जो है ग्रीडनेस उनमें लस्ट पाई जाती थी, वो भी तुम्हारे जैसे थे, वो भी मर गए, तुम्हारे जितने हैंडसम और जवान थे और वो भी मर गए, और एट द एंड तुमने भी मरना है। तो यही हमारी आज की वीडियो थी। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।